Praise the Lord. Praise the Lord. Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति मिले। God give you peace. परमेश्वर आपको शांति दे। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Before meditating word of God, let's humble ourselves. परमेश्वर के वचन का मनन करने से पहले आइए अपने आप को नम्र करें। We need grace to understand His word. उसके वचन को समझने के लिए हमें अनुग्रह की जरूरत है। We need Holy Spirit so that for we are poor and weak and foolish. हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है क्योंकि हम कंगाल है, मूर्ख है और कमजोर है। Holy Spirit, we love you and we welcome you. पवित्र आत्मा हम आपसे प्रेम करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। Come. आओ। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। We are here to study your word. आपके वचन का अभ्यास करने के लिए हम यहाँ मौजूद है। Touch our ear. हमारे कानों को छुओ। Open it. उसे खोल दो। Touch our heart. हमारे हृदय को छुओ। Heal our heart. हमारे हृदय को चंगा करो। Give us understanding. हमें समझदारी दो। We need your understanding. आपकी समझ हमें आपके ज्ञान की जरूरत है। Lord, come and talk to us. प्रभु आओ और हमारे साथ बात करो। Holy Spirit, open our heart. पवित्र आत्मा हमारा हृदय खोलो। Open our ear. हमारे कान खोलो। Open our eyes. हमारी आंखें खोलो। So that we can see Jesus' glory. ताकि हम यीशु मसीह की महिमा देख सके। Bless all who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष In दो। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Let's say amen. आइए आमेन कहें। Hallelujah. हालेलुया। Good morning. सुप्रभात। Praise the Lord. परमेश्वर का महिमा हो। This is the 22nd parable. यह 22वां दृष्टांत है। We are studying Jesus parables. यीशु के दृष्टांतों का हम अभ्यास कर रहे हैं। Here when Jesus went, he finished his preaching in synagogue. यीशु मसीह ने सभा स्थान में जब अपना प्रचार पूरा किया, And then later on he said something. और उसके बाद उसने कुछ कहा। In Luke's, it's 4th chapter. लूका का सुसमाचार 4था अध्याय। Let us read from verse 15. आइए 15वें वचन से हम पढ़े। And he taught in their synagogues, और यीशु ने उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा, and all praised him. और सब लोग उसकी बड़ाई करते थे। Verse 16. 16वां And वचन। he came to Nazareth, और यीशु नासरत में आया, where he was nursed. जहाँ पर यीशु पाला पोसा And गया, as his custom was, और अपनी रीति के he अनुसार went into synagogue वह आराधनालय में गया on the Sabbath day सब्बात के दिन पर, and stood up to read, and he was given the book of Isaiah. और पढ़ाई करने के लिए खड़ा हुआ और यीशु को यशाया की किताब दी गई। And when he opened the book, और यीशु ने जब वह पुस्तक खोली, he didn't explain, but he just read and gave it the book to the and sat down. तो यीशु ने उसमें जो लिखा था वह समझाया नहीं, केवल उसे पढ़ा और किताब वापस देकर बैठ गए। And verse 20. और 20वां वचन। Then closing the book and returning it to the attendants, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी and he sat down. और बैठ गया। The eyes of all the synagogue were fixed upon him, और आराधनालय के सब लोगों की आंख उस पर लगी थी, because already he has preached before many times. क्योंकि पहले उसने बहुत बार प्रचार किया हुआ था। As we read in verse 15, जैसे हमने 15वें वचन में पढ़ा all were praising his preaching. कि उसके प्रचार सुनकर सब उसकी महिमा करते थे। Again he here came and he is reading. फिर से वह यहाँ आता है और फिर से पढ़ रहे हैं। And he is opening the book. He was given the book of Isaiah. और यीशु को यशाया नबी की किताब दी गई। And all eyes of all and the eyes of all the synagogue were fixed upon him. और आराधनालय के सब लोगों की आंखें यीशु पर लगी थी। Verse 21. 21वां And वचन। Jesus began to say this thing. This very day, this passage has been fulfilled in your hearings. तब यीशु ने उनसे कहा कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। And that he was given the book of Isaiah, and he opened the chapter 61, 60, yes. यीशु Isaiah मसीह को 61.
यशाया नबी की किताब दी गई और यीशु मसीह ने यशाया का 61वां अध्याय खोला And from that he opened and he read from verse 1 and 2 and 3. और वहां से यीशु मसीह ने वह खोला और 1 से 3 वचन पढ़े The Spirit of the Lord God is upon me कि प्रभु परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है because the Lord has anointed me to preach. क्योंकि प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है प्रचार करने के लिए To preach only good tidings केवल अच्छा सुसमाचार सुनाने के लिए to the meek, नम्र लोगों को सुनाने के लिए to poor, give them good news. और कंगालों को सुसमाचार देने के लिए Who are humble people, go and say good things to them. कि जो लोग नम्र है उनके पास जाकर एक अच्छा सुसमाचार सुनाओ। So God has sent Jesus Christ तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा to preach good news to the poor people. कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए And he was sent to bind up the broken-hearted. और जो टूटे हुए दिल के लोग हैं उनको मरहम लगाने के लिए वे आए Bandage them whose heart has been wounded. जिनका हृदय घायल हुआ है उनको मरहम पट्टी करने के लिए Someone आए has hurt somebody, go and band their wounds. किसी ने किसी को दुख पहुंचाया है तो जाकर ऐसे लोगों के घाव पर मरहम लगाओ So Jesus said, Spirit of Lord or Jehovah, Spirit of Jehovah is upon me and he has sent me. तो यीशु ने कहा कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे भेजा है To bind up the broken-hearted people. कि जो टूटे हुए दिलों के लोग हैं उन्हें मरहम पट्टी करे And to proclaim liberty to the captives. और बंधुओं के लिए स्वतंत्रता को घोषणा करे So Jesus came to set the captives free. तो यीशु कैदियों को छुड़ाने के लिए That was आए his ministry. यीशु की यह सेवा थी And also he said that I'm been sent so that I open the prisoners' bondage. और Who यीशु were मसीह bound, I set them free. और यीशु मसीह को इसीलिए भेजा गया था कि जो कैदी थे उन लोगों को वह छुटकारा दे To set free the people who were sitting and waiting for Messiah. जो लोग बैठकर मसीहा के लिए राह देखते थे ऐसे लोगों को वह छुड़ा ले For that Jesus came. इसीलिए यीशु मसीह आए So Jesus, when he was preaching, he was saying that this is my ministry and this is the prophecy for me. तो यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे तो कह रहे थे कि यह मेरे लिए यही सेवकाई है और मेरे बारे में यही भविष्यवाणी कही गई He है opened the book उसने किताब खोली and said, और कहा Spirit of Jehovah is upon me. यहोवा का आत्मा मुझ पर है And he said this, और फिर यीशु ने आगे बातें कही to proclaim the acceptable year of the Lord. कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष को मैं प्रचार करूं The Jubilee year I have to proclaim. जुबली जो वर्ष होता है उसका मुझे प्रचार करना है The 50 year of the Israel, every 50 year they celebrate. इज़राइल में हर एक 50 साल जुबली साल होता है और वे उत्सव मनाते हैं And on this day, the people who are in any debt, they are being released. और उस दिन उस साल में जितने भी लोग कर्जदार होते हैं उनको छुटकारा दिया जाता है There was a law that you have to return their property back. उनके लिए नियम था कि ऐसे कैदियों को उनका जो कुछ भी है वह इस साल में वापस देना पड़ता So when था Jesus came, that was Jubilee day. तो जब यीशु आए तो वह जुबली का दिन था Leviticus 25 verse 13. ले व्यवस्था की किताब 25वां अध्याय 13वां वचन In this year of Jubilee, or this is the acceptable year, Leviticus 25th chapter verse 13. ले व्यवस्था 25वां अध्याय और 13वां वचन इस जुबली के वर्ष में तुम अपनी अपनी निज भूमि को लौटने पाओगे In this year of Jubilee, each of you shall return to their own property. इस जुबली के वर्ष में तुम अपनी अपनी भूमि में पहुंच पाओगे The day of vengeance of our Lord God, who comfort all the moms who are in sorrow. For them Jesus came.
और हमारे प्रभु के प्रतिकार का दिन आया है और जो लोग दुखी है उनके लिए यीशु आए। So as we read Isaiah 61 and verse 2, जैसे हमने पढ़ा यशायाह की किताब 61वां अध्याय और 2 वचन, as Jesus said, I came to proclaim the acceptable year. जैसे यीशु ने कहा कि जुबली के वर्ष का मैं प्रचार करूं, इसीलिए Acceptable year, the year on which everything is going to be accepted. एक ऐसे साल का यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का वह प्रचार करे, इसलिए जो वर्ष को स्वीकार किया जाए उसका प्रचार करने के लिए। So Jesus finished his saying and said, the what I have said, it is finished. तो यीशु ने यह पढ़कर ऐसा कहा कि मैंने जो कहा वह पूरा हुआ। Luke 4th chapter, लूका का सुसमाचार 4वां अध्याय verse 21. 21वां वचन, On this hearing, what I said is fulfilled, Jesus said. यीशु ने कहा कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने जो मैंने कहा है वह पूरा हुआ। Verse 22. 22वां वचन, All who were present spoke well of him और जितने वहां सुन रहे थे सबने यीशु को सराहा, उसकी बड़ाई की and were amazed at the beautiful words that fell out of his lips. और अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकली, उनसे वे लोग अचंभा हुए। And they doubted, is this not Joseph's son? और वे कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं है? And then Jesus said 33rd words, in that he said, doubtless you will remind me of the saying. और आगे 23वें वचन में यीशु ने यह सुनकर कहा कि तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे। So you are going to say one parable. कि तुम एक दृष्टांत कहोगे। Doctor, cure yourself. कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। I said I came to heal the brokenhearted. I came to give gospel to the poor people, and I came to set free the captives. मैंने कहा कि टूटे हुए हृदयों को जोड़ने के लिए और कैदियों को छुड़ाने के लिए, To open the eyes of the blind. और अंधों की आंखें खोलने और कंगालों को छुटकारा देने के लिए मैं आया। And you are doubting me that I am son of Joseph. और तुम अब संदेह कर रहे हो ऐसा कह के कि मैं यूसुफ का पुत्र हूँ। Surely you are going to doubt again. तो सच में फिर से तुम संदेह करोगे ही। But I say surely लेकिन मैं कहता हूँ, अवश्य यह कहता हूँ, that you are going to say doctor to me. कि तुम मुझसे ही ऐसा कहोगे कि हे वैद्य। You are calling, you will call me doctor. कि तुम मुझे वैद्य कहोगे। And you will say cure yourself. और तुम कहोगे कि अपने आप को ठीक कर। And you will say, do here in your own country all that we have heard that had been done at Capernaum. और जो कुछ हमने सुना है कि तूने कफरनहूम में किया गया, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। So Jesus stared at the crowd or the synagogue people. तो यीशु ने आराधनालय के वह लोगों के सामने आंखें ताकी And said, और कहा, you are going to remind me this. कि तुम मुझे यह बात याद दिलाओगे। Doctor, कि हे वैद्य, cure yourself. अपने आप को ठीक कर। And whatever you did miracles in Capernaum, do it here even. और जितने भी चमत्कार तूने कफरनहूम में करे, वे सब काम यहाँ भी कर। Jesus has not started yet the big ministry. यीशु ने अब तक सेवकाई शुरू नहीं की थी। Verse 24. 24वां And Jesus वचन, said, और यीशु ने I कहा, tell you मैं तुमसे कहता that हूँ no prophet is accepted in his own country. कि कोई भविष्य वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। And he again said, you are going to call me prophet. फिर से यीशु ने यहाँ पर कहा कि तुम मुझे भविष्य वक्ता You are going कहोगे, to call me doctor. तुम मुझे वैद्य भी कहोगे, Also you are going to call me prophet. और तुम मुझे नबी भी You कहोगे। are saying I am son of Joseph. तुम ऐसा कह रहे हो कि मैं यूसुफ का पुत्र हूँ, But you will see such miracles that you are going to say that you are a doctor. लेकिन ऐसे चमत्कार तुम देखोगे और फिर ऐसा कहोगे कि तुम तो वैद्य हो। And I did many things and you are going to say you are a prophet. और मैंने बहुत सारे काम किए हैं, फिर तुम यह भी कहोगे कि मैं भविष्यवक्ता हूँ। And he said that no prophet is acceptable in his own country. और यीशु ने कहा कोई भी भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। He finished this parable. यीशु ने यह दृष्टांत पूरा किया। And more he said something.
और आगे यीशु ने कुछ बताया। Verse 25. 25वां Just वचन। keep on listening. You will understand what God wants to say. आप केवल सुनते रहो, आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। Verse 25. 25वां वचन। And where doubtless many widows in Israel in Elijah's days. There were many widows. It is sure. कि इज़राइल के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी। When the heavens and were closed for 3 years and 6 months, there were many widows. कि 3.5 वर्ष तक जब आकाश बंद रहा उस समय वहां पर बहुत सारी विधवाएं थी। In Israel, there were many widows. इज़राइल में बहुत सारी विधवाएं थी। But Elijah, at Elijah's day, पर एलिया के दिनों में he was sent to just one widow, कि एलिया को केवल एक ही विधवा के घर पर भेजा गया। as Sarephath in Sidon. सारफत में एक विधवा के पास, सैदा के सारफत में। So here Jesus said that at famine time, this prophet Elijah was sent for 3.5 years at only one place. तो यहाँ पर यीशु ने कहा कि एलिया के उस समय में, अकाल के समय में, इस भविष्य वक्ता को 3.5 साल के लिए केवल एक ही विधवा के घर में भेजा गया। He was just sent in one place. उसे केवल एक ही जगह भेजा गया। And this and synagogue, as they listened to this, they became enraged, or they became angry. और ये बातें सुनते ही आराधनालय में जो लोग थे वे उन्हें क्रोध आया। Verse 29. 29वां वचन। Now they are staring at Jesus Christ. अब यीशु मसीह की ओर वे ताक रहे हैं। And they drove out, of the, okay, 20, छोटी बस गिरा दिया। okay, it's 29. Okay. 27. 27वां। And there were many lepers in Israel और इज़राइल में बहुत सारे कोढ़ी थे in the time of Elisha, the prophet. एलीशा भविष्यवक्ता के समय में, And none of them were cleansed, और उनमें से किसी को भी शुद्ध नहीं but किया only गया। Naaman the Syria. लेकिन जो सीरिया का सूर्यानी नामान था उसे ही शुद्ध किया गया। Now Jesus said about two people, अब यीशु ने 2 लोगों के बारे में बात one की। Elijah and another Elisha. एक एलिया था और दूसरा एलीशा था। Elijah was compared to a prophet, एलिया की तुलना भविष्यवक्ता के साथ की and गई Elisha was compared to a doctor. और एलीशा की तुलना एक वैद्य के साथ की गई। Jesus to explain the parable of doctor and prophet, और यह भविष्यवक्ता और वैद्य का दृष्टांत समझाने के लिए he explained with 2 people. तो समझाने के लिए उसने 2 लोगों के नाम लेकर समझाया। Elijah was the prophet एलिया भविष्यवक्ता था who was sent. जिसे भेजा गया था। Prophet was sent. भविष्यवक्ता को भेजा गया था। Jesus explained that was a prophet. यीशु ने यह बताया, समझाया कि वह भविष्यवक्ता था। Elijah was sent at the widow who stayed at Sarephath. सारफात में जो विधवा रहती थी वहां पर एलिया को भेजा गया। And the prophet Elisha, और भविष्यवक्ता एलीसा के बारे में, to that prophet Naaman came to be cured. वह भविष्यवक्ता नहीं गया, लेकिन वह नामान कोढ़ी उसके पास आया चंगाई पाने के लिए। So Jesus said, people, I came for some people, I came at some place, for some place. कि यीशु ने कहा कि कुछ जगह के लिए मैं आया हूँ। I'm sent for some places. और कुछ जगह के लिए मुझे भेजा गया है। And I'm going to heal
everyone. और मैं सबको चंगाई दूंगा। Okay, verse 31. 31वां वचन। Okay, it's 29. Sorry, it's 29. माफ करना, 29वां वचन। People were angry listening this to about Elijah and Elisha, एलिया और एलिशा के बारे में सुनकर लोगों को गुस्सा आया, because Jesus said to the people क्योंकि यीशु ने लोगों से कहा that Elijah was in Israel. कि एलिया Elijah was in Israel, एलिया इज़राइल में था, but he was sent to Sarfat. लेकिन उसे सारफत में भेजा गया। And Elisha was in Israel, और एलिशा भी इज़राइल में था, but in Israel no leper was healed. लेकिन इज़राइल में कोई भी कोढ़ी चंगा नहीं हुआ। But the one who was not of Israel, लेकिन जो व्यक्ति इज़राइल का नहीं था, he was healed. उसे उसे चंगा किया गया। Just keep on listening. केवल सुनते रहो। And listening this, people were angry with Jesus Christ. और यह सुनकर लोगों को यीशु पर गुस्सा आया। And they led him to the brow on the hill on which their town stood, intent to hurl him down, throw him down. उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा But दे। he passed to the middle of the crowd and went on his way. परंतु यीशु उनके बीच में से निकलकर चला गया। And then Jesus went down to Capernaum. फिर यीशु गालील के कफरनहूम में गए। He said that people of Nazareth, यीशु ने कहा कि नाजरेत के लोग, I came again here where I was been grew. कि मैं उस जगह में फिर से वापस आया जहां पर मैं पाला पोसा गया था, बड़ा हुआ। He came here and said, उस जगह में यीशु ने आकर कहा, you people are going to say what you did in Capernaum, do here also. तुम लोग मुझे ऐसा ही कहोगे कि कफरनहूम में तूने जितने काम किए वह चमत्कार यहाँ भी कर। But these people were angry लेकिन यह लोगों को गुस्सा आया and they tried to throw Jesus down. और यीशु को पहाड़ पर से गिरा देने का उन्होंने प्रयास किया। And Jesus went down to Capernaum. फिर यीशु नीचे कफरनहूम में गए। In a city, Galilee, on the Sabbath, he taught the people. गालील का जो कफरनहूम था वहां गए और सब्बात के दिन में लोगों को उपदेश दिया। Jesus already said to the people who were angry that you don't want that I do something here. यीशु ने उन लोगों से कहा कि जो पहले से ही गुस्से में थे और उनसे कहा कि मैं यहाँ कुछ करूँ, ऐसा तुम नहीं चाहते। You don't want that I do something, then now you are going to call me from Capernaum. तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ कुछ करूँ, तो फिर अब मैं कफरनहूम जाऊंगा और वहां से तुम्हें मुझे बुलाना पड़ेगा। So Jesus said that you are surely going to say this proverb, physician or doctor, heal yourself. Whatever we have heard done in Capernaum, do here also come. तो यीशु ने कहा कि तुम ऐसा कहोगे कि हे वैद्य, तू अपने आप को चंगा कर, और कफरनहूम में जो कुछ भी तूने चमत्कार किए हमने सुना है वह भी यहाँ आकर तू यहाँ कर। You are going to say this. तुम लोग ऐसा You कहोगे, are going to call me here. तुम मुझे यहाँ वापस But बुलाओगे। they said, no, we are going to throw you. लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तुझे फेंक देंगे। Jesus said, I am giving a prophecy. I am prophesying. यीशु ने कहा कि मैं ये भविष्य कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, And I am saying a parable to you. और मैं तुम्हें दृष्टांत कह रहा You हूँ। are surely saying going to say this. तो हम सच में तुम ऐसा कहोगे Physician, heal yourself. कि हे वैद्य, अपने आप को चंगा कर। These people didn't believe Jesus Christ. यह लोगों ने यीशु मसीह में विश्वास नहीं They किया। were praising Jesus Christ before, पहले वे यीशु मसीह की बड़ाई करते but he थे, said, I am sent here so that I heal the broken-hearted people. लेकिन यीशु ने कहा कि मुझे यहाँ इसलिए भेजा गया है ताकि टूटे हुए हृदयों के लोगों को मैं चंगा करूं। But you are trying to kill me. लेकिन तुम लोग मुझे मारने का प्रयास कर रहे हो। And from this year, he went in Capernaum. और यहाँ से फिर यीशु मसीह कफरनहूम गए। Jesus gave an example of prophet who did only those miracles that were allowed to do. यीशु ने उन भविष्यवक्ताओं के बारे में दृष्टांत दिया, नाम दिया
कि जिनको केवल वही चमत्कार करने के लिए कहा गया था। The prophet, they were sent at only some special places. वह भविष्य वक्ताओं को केवल कुछ ही जगह पर, विशिष्ट जगहों पर भेजा गया था। And more, they never were able to heal all of few, and they were not allowed to heal everyone. और सब लोगों को वे चंगा करे ऐसी उनको परवानगी नहीं दी From गई थी। this story or this passage, we can study something. यह कहानी से, यह वचनों में से हम कुछ अभ्यास कर सकते हैं। When you read Bible, जब आप बाइबल पढ़ते हो, I will give you advice. मैं आपको सलाह दूंगा Read it 2-3 times. कि उसे आप 2-3 बार पढ़ो। As you take a yes, as you take one bite, जैसे आप एक निवाला लेते हो and then you chew for 2-3 times. और आप 3-4 बार तक चबाते रहते So हो। when we are studying Bible, we have to study, and we have to again and again read the same passage. तो जब हम बाइबल का अभ्यास करते हैं तो वापस फिर से 1-2 बार 3 बार हमें वही बात को पढ़ना है, So that we can be able to understand. ताकि हम उसे समझ सके। And when we try to understand, Holy Spirit come and help us. और जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो पवित्र आत्मा आकर हमारी मदद करते Holy हैं। Spirit watch who want to chew and who want to meditate. पवित्र आत्मा देखते हैं, चाहते हैं कि कौन पढ़ना चाहता है और कौन मनन करना Many चाहता times है। people just put it and kiss the Bible and put it away. बहुत बार हम बाइबल पढ़ लेते हैं, चुंबन करते हैं और रख देते हैं, But we don't study. लेकिन हम अभ्यास नहीं करते। Why Bible is given? बाइबल क्यों दिया गया है? Not to put when we are sleeping जब हम near our head, जब हम सोते हैं तो हमारे सर के पास रखने के लिए नहीं, so that no bad dream comes. ताकि कोई खराब स्वप्न ना आ जाए। Many people think that Bible is it is a holy book बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि बाइबल पवित्र किताब है and Satan will flee away if we show Bible. और हम बाइबल दिखाएंगे तो शैतान भागेगा, But we run away from Bible. लेकिन हम बाइबल से भाग जाते हैं। Okay, 5 things. 5 बातें। Jesus gave parable saying, "You will doubt me, I am doctor." यीशु ने दृष्टांत बताकर ऐसा कहा कि मैं वैद्य हूँ, ऐसा तुम संदेह करोगे। From here we learn, यहाँ से हम सीखते हैं। Jesus said, यीशु ने कहा "You will doubt me." तुम मुझे संदेह करोगे। Second thing, दूसरी बात, you don't know why I am saying God did miracle in Capernaum. Why I said God is going to do work in Capernaum. कि परमेश्वर कफरनाहुम में काम करेगा, चमत्कार करेगा, You don't know. ऐसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसकी वजह तुम नहीं जानते। Third thing, तीसरी बात, Jesus said, यीशु ने कहा I am not only preaching in synagogue मैं केवल आराधनालय में प्रचार नहीं करता हूँ, as a leader or as a priest or as a Pharisee, जैसे कोई आगेवान या तो कोई Teacher. याजक या कोई शिक्षक या फारसी के तरह मैं आराधनालय में प्रचार नहीं करता हूँ। every synagogue to go and to preach, it's work of pastor, we might think. हम शायद सोचेंगे कि हर एक आराधनालय में जाकर प्रचार करना ये तो पासबान का काम है, But Jesus said, लेकिन यीशु ने I कहा am prophet. कि मैं भविष्यवक्ता हूँ, I am reading such thing that I am been sent. कि I am मैं- reading that God has sent me. I am reading such verses. मैं इस तरह के वचन पढ़ रहा हूँ ये बताने के लिए कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है। So the one who is sent, he is a prophet. तो जिसे भेजा गया है वह भविष्यवक्ता है। Fourth thing, चौथी बात, we learn, हम ऐसा सीखते हैं, Jesus gave 2 stories of Elijah and Elisha. यीशु ने 2 कहानी बताई, एक एलिया की और एक एलिशा की। To explain, Elijah was sent so that he be fed. यह बताने के लिए एलिया को इसीलिए भेजा गया ताकि वहां एलिया का पालन पोषण हो। And to Elisha, God sent, और एलिशा के पास परमेश्वर ने भेजा, God sent Elisha परमेश्वर ने एलिशा को भेजा to heal the one who is not of Israel. उस व्यक्ति को चंगा करने के लिए कि जो इजराइल का नहीं था। So Jesus said this Elisha was like a doctor.
तो यीशु ने कहा कि यह एलीशा वैद्य के समान था, And Elijah was the person who was being sent. और एलिया ऐसा व्यक्ति था जिसे भेजा गया था। And so Jesus said, I am a prophet and I am a doctor. तो यीशु ने कहा कि मैं भविष्यवक्ता भी हूँ और वैद्य भी हूँ। Fifth thing, पांचवी बात, the people, they tried to throw him down from the mountain. They were angry. लोगों को गुस्सा आया और यीशु को पहाड़ पर से नीचे गिराने का सोच रहे थे। It shows the people are not accepting Jesus Christ. उससे यह दिखता है कि वह लोग यीशु मसीह का स्वीकार नहीं कर रहे When हैं। Jesus understood the people are rejecting me, so he said, now you are going to call me. जब यीशु को यह पता चला कि यह लोग मेरा नकार कर रहे हैं, तब यीशु ने बताया कि तुम्हें मुझे वापस बुलाना पड़ेगा। You will hear many things that I did in Capernaum. मैंने जो कफरनहूम में किए उनमें से बहुत सारी बातों को तुम सुनोगे। The people said, this is the son of Joseph. लोगों ने कहा कि यह तो यूसुफ का बेटा है। And Jesus said, now you are going to mock at me even. और यीशु ने कहा कि अब तुम मेरी मजाक भी उड़ाओगे। Hello doctor, save yourself. कि हे वैद्य अपने आप को बचा ले, And also you are calling me doctor. और तुम मुझे चिकित्सक भी कह रहे हो, And also you are going to call me prophet even. और तुम मुझे भविष्यवक्ता भी कहोगे। We learn two things. Jesus will going to heal the people, and Jesus is going to do mighty work as prophet. हम दो बातें सीखते हैं कि यीशु मसीह लोगों को चंगाई देंगे, और दूसरी बात भविष्यवक्ता के जैसे वह बड़े बड़े काम करेंगे। Jesus went and healed everyone. यीशु गए और सब लोगों को चंगा किया। Jesus gave this two he shared these two incidents. ये दो घटनाओं के बारे में यीशु ने बताया। One of the prophet Elijah, एक एलिया भविष्यवक्ता के बारे who में was sent, जिसे भेजा गया था, and other और दूसरा servant Elisha, एक सेवक एलीशा है, to introduce he was a doctor. वह वैद्य था यह बताने के लिए। Jesus said that I came, God has sent me. यीशु ने कहा कि मैं आया हूँ और परमेश्वर ने मुझे भेजा है, And I'm going to heal the people. और मैं लोगों को चंगा करूंगा। Jesus did many miracles in Capernaum. यीशु ने बहुत सारे चमत्कार किए कफरनहूम में। Matthew 4 and verse 13. मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय 13वां वचन। Leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum. और नासरत को छोड़ के यीशु कफरनहूम में आया और वहां बसा। He went in synagogue of Nazareth where he grew up. नाजरेत में जहां वह यीशु बड़ा हुआ था वहां के आराधनालयों में यीशु गया, And they rejected him. और वहां के लोगों ने यीशु का नकार किया। Now he left this Nazareth अब यीशु ने अपना वह नासरेत छोड़ा, because people were trying to kill him. क्योंकि लोग यीशु को मारने वाले थे। So he now went and lived in this Capernaum place. इसीलिए यीशु ने नासरेत छोड़ा और कफरनहूम में रहने के लिए गया। And there was a prophecy even that he is going to go there. और भविष्य वचन भी था कि यीशु कफरनहूम में जाएगा। Yes. Even Jesus did many miracles in Capernaum where he stayed. हाँ, यीशु ने कफरनहूम की जहां वह रहा वहां बहुत सारे चमत्कार किए। And said, if the miracle were be done in other places, the people would have been believed. कि ऐसे चमत्कार दूसरी जगहों में किए गए होते तो लोगों ने विश्वास कर लिया होता। Matthew 11:23. मत्ती का सुसमाचार 11वां अध्याय 23वां वचन। And you, Capernaum, which are exalted to heaven, shall be brought down to hell. और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे आएगा। Why? क्यों? For if the mighty work which have been done here in your place, जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, which as if it had been done in Sodom, they would it would still have remained until the day. यदि ऐसे काम सदोम में किए गए होते तो आज तक सदोम बना रहता। God wouldn't destroy this Sodom if that is such a great work, if it would be happen here. और जो ऐसे बड़े चमत्कार यहाँ हो रहे हैं, ऐसे चमत्कार सदोम में हुए होते तो परमेश्वर उस शहर का नाश नहीं करते। This Capernaum people were blessed people.
यह कफरनहूम के लोग आशीषित लोग थे, धन्य थे। Jesus stayed, dwelled there. यीशु वहां पर गए और वहां पर बसे। John 6 and verse 24. यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय 24वां When the वचन। people saw that Jesus Christ was not here, neither his disciple are here, they took their boat and came to Capernaum seeking Jesus Christ. जब लोगों ने देखा कि यीशु यहाँ नहीं है और न उसके चेलों को देखा कि वे भी नहीं है, तो वे अपनी छोटी छोटी नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम को पहुंचे। Look, people were searching Jesus Christ and they knew that we will find him in Capernaum only. कि देखो यहाँ पर लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं और उनको पता था कि यीशु हमें कफरनहूम में ही मिलेगा। Jesus healed all people in Matthew 4 chapter verse 23. यीशु ने सब लोगों को चंगा किया। मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय 23वां वचन। Jesus went all around Galilee and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. यीशु गालिल की चारों ओर चलते गए, गालिल में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। So Jesus even gave his disciple that you even go and heal the people and drive out the evil spirit. तो यीशु ने अपने चेलों से भी यही कहा कि जाओ और लोगों को चंगा करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। Matthew 12 and verse 15. मत्ती का सुसमाचार 12वां अध्याय 15वां वचन। Jesus, however, it's written, Jesus, however, became aware of it and he went away from that place. A number of people followed him and he cured them all. यह जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया। So here we see that Jesus healed everyone. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने सबको चंगा किया। In Matthew 4 and verse 24, मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय 24वां वचन। his fame went throughout all Syria from this Capernaum. और सारे सूरिया में यीशु का यश फैल गया कफरनहूम से। And they brought to him all sick people and that were taken with drives disease and tormented. और To all he healed. और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए और उसने उन्हें सबको चंगा किया। Who were possessed with demons, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, who were having moonstruck or lunatic, that this is the word as it is, we know sunstroke, it is moonstruck. Here the word, verse 24. 24वें वचन में जो यहाँ पर शब्द है जैसे सूरज की गर्मी लग जाती है, What is in Hindi? हिंदी में है मिर्गी वालों। You might not know what is nirgi walo, but it is lunatic. इसका शायद आपको अर्थ नहीं सब पता होगा, लेकिन यह Lunatic, it is mean in moonstruck, as it is sunstroke, it is moonstruck. जैसे सूरज की किरणों से गर्मी लग जाती है, It's moonstruck. तो ये मूनस्टॉक जैसा है। Those who were even paralyzed people, और झूले के मारे हुए जो लोग थे, whose one part is disabled to work or whole body be disabled, that people are called paralyzed people. ऐसे लोग Paralyzed. जिनका आधा शरीर शायद काम ना करता हो या पूरा शरीर ना काम करता हो, ऐसे लोगों को लकवा वाले लोग कहते हैं। And Jesus healed all and he failed not. और यीशु ने सबको चंगा किया और यीशु निष्फल नहीं हुआ। And he was qualified, this is the doctor. और उसे परीक्षा में वह सफल हो गया, पता लग गया सबको कि यही वैद्य है। He can heal every type of disease and every type of sickness. कि वह व्यक्ति हर एक प्रकार की बीमारियों को और रोग को चंगा कर सकता He है। can cast out any type of demons. और वह कोई भी प्रकार के दुष्ट आत्मा को निकाल सकता We है। know there are different doctors. हम जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के डॉक्टर होते हैं। Some is eye specialist, some is tooth specialist and cancer specialist, and we know heart specialist, we know that thing.
कि कोई आंखों के स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई दांत के स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई कैंसर के और कोई हृदय के स्पेशलिस्ट होते हैं। But Jesus healed everyone to show that he is the qualified doctor. लेकिन यीशु ने सबको चंगा किया यह दिखाने के लिए कि वह हर कोई रोग को चंगा कर सकता है, ऐसा डॉक्टर है। If he wouldn't heal one single man, यदि यीशु ने कोई एक मनुष्य को भी चंगा नहीं किया होता, the Nazareth people would say, तो नासरत के लोग कहते, we know you are not doctor. हम जानते हैं कि तुम वैद्य नहीं है, Because we have heard one person is left. क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि एक व्यक्ति को तू चंगा नहीं कर पाया। If someone don't accept you, they will search what lacking you. यदि कोई आपका स्वीकार ना करे तो लोग यह खोजेंगे कि तुम में क्या कमी रह गई थी, They are going to be after you. और वे आपके पीछे पड़ेंगे। But if someone love you, लेकिन यदि कोई तुमसे प्रेम करे they will accept even your fault. तो वे आपकी गलतियों का भी स्वीकार But करेंगे। the one who hate, लेकिन जो नफरत करता है they are going to backbite just for one thing. केवल एक ही कमी के लिए वे आपके पीठ के पीछे आपकी बुराई करेंगे। Jesus said that, oh Nazareth people, यीशु ने कहा कि हे नासरेत के लोग, where I am been grew up, कि नासरेत की जो वह जगह जहाँ पर मैं बड़ा हुआ, and I said that Spirit of Lord is upon me, और वहाँ मैंने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर and I है, am been sent just for you people. और केवल तुम लोगों के लिए मुझे भेजा गया है, But you are want to throw me, लेकिन तुम मुझे गिरा देना चाहते हो। and once and you are going to say, Doctor, what you did miracles in Capernaum, come and do here. और तुम मुझे ऐसा कहोगे कि हे वैद्य, जो तूने कफरनहूम में काम किए वह यहाँ आकर भी कर। Oh Jesus of Nazareth, कि हे नासरेत के यीशु, where you have been grew up, come here. जहाँ तू बड़ा हुआ है बचपन से, वह जगह में वापस आ। Doctor, heal yourself. और हे वैद्य, अपने आप को चंगा कर। Jesus did many miracles and more in Capernaum. यीशु ने बहुत सारे चमत्कार किए और कफरनहूम में ज्यादा चमत्कार Acts किए। 10 verse 38. प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 38वां वचन। The story, I mean, of Jesus of Nazareth and how God anointed him as Christ by enduing him with the Holy Spirit and empowering him with even power. Okay, anointing him with Holy Spirit and with power, and Jesus went about doing good and curing all who were under the power of devil. कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नाजरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। So Peter is preaching this to Cornelius' house. तो पत्रस यह कर्नेलियुस के घर में बता रहा है Our Jesus, कि हमारा यीशु, Jesus of Nazareth, नासरेत का यीशु, he was powered with Holy Spirit. पवित्र आत्मा से उसे सामर्थ दिया गया था। Because when he came in Nazareth, क्योंकि जब वह नासरेत में आया he said, तो ये उसने कहा, Spirit of Lord is upon me. प्रभु का आत्मा मुझ पर है। Oh, so in Nazareth, तो हाँ, he is anointed. नासरेत में उसका अभिषेक हुआ। No, he was already anointed, वह पहले से ही अभिषेक था, but he started his ministry saying this, लेकिन यह कहकर उसने अपनी सेवकाई शुरू की Spirit of Lord is upon me in Nazareth. कि नासरेत में उसने यह कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। And he started his ministry doing curing all, और सब रोगों को चंगा करता फिरा और ऐसे सेवकाई शुरू की, doing good and curing all. भलाई करता फिरा और सबको अच्छा करता फिरा, Because God was with him. क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। And Jesus proved that he was the physician, he was the best doctor. और यीशु ने यह साबित भी किया कि वह ही वैद्य था और उत्तम वैद्य था। Luke 5th chapter verse 31. लूका का सुसमाचार 5वां अध्याय 31वां वचन। In answering, Jesus said, it is not those who are well that need a doctor, but those who are ill, they need me. यीशु ने उनको उत्तर दिया कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। And so I am going to heal the people as a doctor.
तो जो वैद्य के नाते मैं लोगों को चंगा करूंगा। So Jesus said, तो यीशु ने कहा those who are well, for them there is no need to call doctor. कि जो अच्छे खासे हैं उनके लिए कोई जरूरत नहीं कि कोई वैद्य को बुलाए, But those who are ill, for them doctor is needed. लेकिन जो लोग बीमार हैं उनके लिए वैद्य की आवश्यकता And so I है। am going to heal the people. इसलिए मैं लोगों को चंगा करने के So लिए जाता wherever हूं। Jesus went, he healed the people as a doctor. तो जहाँ कहीं भी यीशु गए वहां पर वैद्य बनकर लोगों को चंगा किया। All people shouted and said, come, 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 heal me. सब लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर बुलाया कि यीशु आओ आओ और मुझे चंगाई दो। And so Jesus said, तो यीशु ने कहा the well, they don't need me. जो अच्छे हैं उनको मेरी जरूरत नहीं, But the people who are ill, who are sick, they need me. लेकिन जो लोग बीमार हैं उनको मेरी जरूरत है। So Jesus called himself a doctor. तो यीशु ने अपने आप को वैद्य कहा, The doctor who healed everyone. ऐसा वैद्य जो जिसने सबको चंगा किया। But the time is going to come, the Nazareth people are going to say, लेकिन ऐसा समय आएगा जहां नाजरेत के लोग ऐसा कहेंगे Doctor, heal yourself. कि हे वैद्य अपने आप को चंगा कर। But one day was going to come in Jesus' life, what he prophesied. लेकिन यीशु ने जो भविष्य कहा वैसा एक दिन अपने जीवन में होने वाला था। Jesus said this, यीशु ने यह कहा that you are going to mock at me कि तुम मेरी मजाक उड़ाओगे and you will say, और तुम कहोगे heal yourself. अपने आप को चंगा कर। So when Jesus said, the people, you people are going to mock at me, तो जब यीशु ने ऐसा कहा कि तुम लोग मेरी मजाक उड़ाओगे, it means उसका अर्थ यह है Jesus knew the people, they rejected me. यीशु जानते थे कि यह लोगों ने मेरा It means उसका अर्थ यह है कि यह लोगों ने मेरा नकार कर दिया है they are not believing me as a doctor. और मैं वैद्य हूँ ऐसा यह लोग नहीं मानते हैं। और यह बात यीशु को समझ में आई थी। All other people, they accepted Jesus as doctor. दूसरे सब लोगों ने यीशु को वैद्य मानकर स्वीकार लिया था। He healed everyone. यीशु ने सबको चंगा Healed किया, everyone. हर एक को चंगा किया। But the people of Nazareth, where he was grew up, लेकिन नाजरेत के लोगों में जहाँ पर यीशु बड़े हुए थे, they tried to kill him. वह लोगों ने यीशु को मारने का प्रयास And किया। for them he said, you are going to mock at me and call me doctor. और उन लोगों के लिए यीशु ने कहा कि तुम मेरी मजाक उड़ाओगे और मुझे एक दिन वैद्य कहोगे And say, heal yourself. और ऐसा भी कहोगे कि हे वैद्य अपने आप को चंगा कर। Jesus healed all, so that proverb was used when he was suffering. यीशु ने सबको चंगा किया, लेकिन जब वह खुद दुख में था वह देखकर यह कहावत निकली He was helpless on cross. कि वधस्तंभ पर वह निस्सहाय Luke था। 23 and verse 35. लुका का सुसमाचार 23वां अध्याय 35वां वचन। We are studying only Luke. हम केवल लुका का सुसमाचार का अभ्यास कर रहे हैं। 4th chapter, चौथा अध्याय where Jesus said, जहाँ पर यीशु ने कहा, and in Luke 23rd chapter, और लुका का 23वां अध्याय, the writer Luke, यहाँ पर लेखक जो लूक है, he want to fulfill the prophecy, so he is writing. वह चाहता है कि वह भविष्य वचन को वह पूरा करना चाहता है, इसीलिए लिख रहा है। And that happened even. और ऐसा हुआ भी। The rulers also with them denied him, saying he saved others. He saved others. और सरदार भी ठट्ठा कर करके कहते थे कि इसने औरों को बचाया, Why is not saying himself? तो वह खुद को क्यों नहीं बचा रहा है? Here the word for save, it is sodezo. यहाँ पर बचाने के लिए जो शब्द है वह है सोदेजो। It means a person who is in so much pain that he need a rescue. उसका अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो इतने दुख में आ जाता है कि उसे छुटकारे की जरूरत पड़ती है। You might have feel the pain of neck, आपने शायद गर्दन के दर्द का महसूस किया होगा, or you might have feel the pain of back. या फिर आपको पीठ दर्द महसूस किया होगा आपने। You might have saw the pain in your tooth. और आपके दांत में आपने शायद दर्द को महसूस किया होगा। We people had know the what is pain. और दर्द क्या है हम लोगों ने यह जाना है, हमको पता है। And so we go to doctor and say, please save me.
इसीलिए हम डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं मेहरबानी करके इलाज करो, मुझे बचाओ। So the people, they said, you are so much in pain, तो लोगों ने यह देखकर कहा कि तू इतने दर्द में आ गया है, you are so much injured, इतना घायल हो गया है, and on the cross you are helpless. और वधस्तंभ पर तू निस्सहाय है, Save yourself. तो अपने आप को बचा। He delivered other from the pain. उसने दूसरों को दर्द से छुड़ाया, Let him save himself. अब उसे अपने आप को बचाने दो। If he be Christ, the chosen of God, यदि यह परमेश्वर का मसीह हुए तो sodezo, save yourself. तो सोदे जो मतलब कि अपने आप को बचा ले, Rescue yourself from this pain. यह दर्द से अपने आप को छुड़ा ले। But already it was written in Matthew 8 and verse 16-17 that Jesus, he is going to take our infirmities on the cross and bore burden of our sickness. लेकिन यह पहले से ही लिखा गया था, मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय 16वां 17वां वचन, कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। When he healed the people, जब उसने लोगों को चंगा किया, he healed every people. उसने हर एक व्यक्ति को चंगा किया। But there was a prophecy that he is taking their pain, he is taking their disease. कि वह भविष्य वचन था कि वह उनका दर्द ले रहा है, उनके रोगों को वह खुद ले रहा है। Isaiah 53 and verse 4. यशाया की किताब 53वां अध्याय 4था वचन। Yet surely our sickness he carried, he took it. कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है, अपने ऊपर ले लिया है। As we feel the pain of our body, जैसे हमारे शरीर का दर्द हम महसूस करते हैं, he experienced the same. उसने वही अनुभव किया, But he can't rescue himself. लेकिन वह अपने आप को नहीं छुड़ा सकता था। And as for our pains, he bear the burden of them. और हमारे दुर्दशा के लिए, हमारे दर्द के लिए यीशु ने हम सबका बोझ उठा लिया और सहा। And when he was stricken, और जब उसे मारा गया, we thought he was smitten by God. तो हमने सोचा कि परमेश्वर ने उसे मारा है, दुर्दशा में But he लाकर रखा है। humbled himself by keeping calm. लेकिन चुप रहने के द्वारा उसने अपने आप को ना। So on cross, Jesus took our pain, sorrow, disease, sickness, वधस्तंभ पर यीशु ने हमारे दुख, दर्द को, रोगों को, बीमारियों को लिया, and he healed the people. और यीशु ने लोगों को चंगा किया। Jesus knew that one day I'm going to be helpless. यीशु जानते थे कि एक दिन मैं अकेला पड़ जाऊंगा, निस्सहाय हो जाऊंगा। And God is, and that would be God will. और वह परमेश्वर की इच्छा होगी। As at Naaman, as Elisha time, जैसे एलिशा के समय में only the Naaman leper was healed, केवल नामान कोढ़ी को चंगा किया and गया, all in Israel they were not healed. और इजराइल में जितने कोढ़ी थे उनको चंगा नहीं किया गया। All the Israel was not healed. सारे इजराइलियों में से किसी को चंगा नहीं किया गया। Whole Israel was not healed. पूरे इजराइल को चंगा नहीं किया गया। Same way, उसी तरह this Israel, this Jesus Christ, यह इजराइल या यीशु मसीह, he was not healed. उसे चंगा नहीं किया गया, But all the people were healed. लेकिन दूसरे सारे लोगों को चंगा किया गया। Romans 15 verse 3. रोमियो की पत्री 15वां अध्याय 3रा वचन। For even Christ did not please himself, but as it was written, the insult of those who insulted you has fallen on me. क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। So Jesus knew that the power I am not used, it's not used to use that I use it. तो It's not for me. यीशु यह समझ गए थे कि जो सामर्थ मुझे मिला है वह मेरे लिए उपयोग करने के लिए नहीं है। It is not for me, वह मेरे लिए नहीं है, not for Israel, इजराइल के लिए नहीं है, but for the Naaman. लेकिन नामान के लिए है। So Jesus cleared the people that one day you are going to say, heal yourself. तो यीशु ने लोगों को यह स्पष्ट करके बताया कि एक दिन तुम मुझे कहोगे कि अपने आप को चंगा कर। And Elisha didn't heal
any leper in Israel. और एलीशा ने कोई भी इज़राइल में कोई भी कोढ़ी को चंगा नहीं किया। And Jesus represent himself as Israel. और यीशु खुद अपने आप को इज़राइल के रूप में प्रस्तुत करते That हैं I am not going to be healed. कि मुझे चंगाई नहीं मिलेगी। We learn. हम सीखते हैं। So here we learn. तो यहाँ पर हम सीखते हैं Jesus was sent there, there he went. Where he was sent, he went there. यीशु को जहाँ भेजा गया वहाँ ही यीशु गए। But Jesus healed not himself. लेकिन यीशु ने अपने आप को कभी चंगा नहीं किया। Elisha didn't heal anyone leper in Israel. एलीशा ने कोई कोढ़ी को इज़राइल में कोई कोढ़ी को चंगा नहीं किया। But Elijah, where he went went as prophet. लेकिन एलिया जहाँ कहीं भी गया तो वहाँ भविष्यवक्ता के रूप में गया। So Jesus went wherever as he was sent. तो यीशु मसीह को जैसे भेजा गया, जिस जगह भेजा गया वैसे वह गया। But he didn't heal himself. लेकिन उसने अपने आप को चंगा नहीं किया। So Jesus was not allowed to heal himself. तो अपने आप को चंगा करने के लिए यीशु को परवानगी नहीं So दी Jesus गई। was a prophet like Elijah. तो एलिया के समान यीशु मसीह भविष्यवक्ता थे। And he was served outside. और बाहर के लोगों में यीशु की सेवा हुई, लोगों ने यीशु की सेवा की। Yes. And as a doctor, he healed all, but he left sick. लेकिन और वैद्य के रूप में उसने सबको चंगा किया, लेकिन अपने आप को उसने खुद को चंगा नहीं किया। So Elijah and Elisha, these are two. It represent a prophet and doctor. तो एलिया और एलीशा यह दो है जो एक भविष्यवक्ता बताता है और दूसरा वैद्य बताता है। And the Elijah, he was sent, and there he stayed. और एलिया को भेजा गया, जहाँ भेजा गया वहाँ पर वह रहा। And Jesus left Nazareth and went to Capernaum. और यीशु ने नासरेत को छोड़ा और कफरनहूम गए। And everywhere he healed people. और हर जगह यीशु ने सब लोगों को चंगा किया। As Naaman. नामान को जैसे चंगा किया था वैसे। But he left himself. He left himself, but saved himself. लेकिन यीशु ने अपने आप को चंगा नहीं किया, लेकिन अपने आप को बचाया। He didn't save himself. यीशु ने अपने आप को बचाया नहीं, अपने आप को चंगा नहीं किया। And so the saying was fulfilled that you saved others, save yourself. इसीलिए जो कहावत कही गई थी कि तूने दूसरों को बचाया तो अपने आप को बचा ले, यह कहावत पूरी हुई। So Jesus said, you people, Nazareth people, you have to say that why this Elisha didn't heal anyone in Israel. तो तुम नासरेत के लोगों को यह कहना चाहिए था कि यह एलीशा ने इज़राइल में क्यों किसी को चंगा नहीं किया। Why he didn't save Israel. उसने इज़राइल को क्यों नहीं बचाया। So this is that was the explain. This what Jesus want to say. तो यह बात यीशु मसीह बताना चाहते When थे। we study, we get much knowledge. जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें ज्यादा ज्ञान मिलता है। Praise the Lord. प्रभु का महिमा God हो। give you more understanding. परमेश्वर आपको अधिक समझदारी दे, Amen. ज्ञान दे। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते We हैं। love Jesus' word हम यीशु के वचनों से प्रेम करते हैं and we love to listen Him. और उसे सुनना हम पसंद करते हैं। Holy Spirit, we love you पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रेम करते हैं for you help us to meditate. क्योंकि आप हमें मदद करते हो मनन करने के लिए। Whatever we have been studied, हमने जो कुछ भी अभ्यास किया है, let each one understand. हर एक व्यक्ति इसे समझे। And thank you once again for all the revelation. और सारे ज्ञान के लिए फिर से एक बार आपका धन्यवाद। We pray for each one हम हर एक के लिए प्रार्थना करते who हैं are joined with us and listening. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं। Bless them with truth उनको सत्य से आशीष दो and let them understand what the proverb was. और वह कहावत क्या थी, वह बात को वे समझे। Bless all people.
सब लोगों को आशीष In दो। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Let's pray together what Lord taught. ये मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in ये heaven, हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. की इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ As we करो, forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ। For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका Thy है, is power, पराक्रम आपका Thy है, is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Praise God. परमेश्वर का God bless महिमा you हो। all. परमेश्वर आप सबको आशीष Thank you for दे। watching and listening. देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। Share it and God bless you. इसे आप बढ़ाते जाओ और परमेश्वर आपको आशीष दे। And listen once again. और फिर से एक बार सुनो। Amen. आमेन। Praise God.